یہ آل انڈیا ریڈیو سری نگر ہے۔ خبرنامے کے ساتھ ہم حاضر، پہلے اس وقت کی اہم خبریں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے کیا جے پور مہاکھیل کے شرکاء سے خطاب۔ کہا، مرکزی حکومت ملک میں سپورٹنگ کلچر کو پروان چڑھانے میں کوئی بھی دقیقہ نہیں کرے گی فروگزاشت۔ ایل جی انتظامیہ یوٹی میں باغبانی کے شعبے کو معیار کی بلندیوں تک پہنچانے کے لیے پرعزم۔ اگلے 5 برسوں کے دوران 1 کروڑ 11 لاکھ معیاری میوہ پودے کیے جائیں گے تیار۔ جموں کشمیر میں آف کی زمین آف کی نگرانی پہل کے تحت اب تک مستحقین میں 28 لاکھ اراضی پاس بک کیے گئے تقسیم۔ لینڈ ریکارڈز میں شفافیت اور آسانی لانے کی ضمن میں ایک اہم قدم۔ اور پاکستان کے سابق صدر پرویز مشرف کا طویل علالت کے بعد دبئی میں انتقال۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیراعظم نریندر مودی نے آج ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے جے پور مہاکھیل کے شرکاء سے خطاب کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ اس طرح کے کھیل مقابلوں سے ملک میں سپورٹنگ ٹیلنٹ کو فروغ دینے میں مدد ملتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اس بات کو یقینی بنا رہی ہے کہ کوئی بھی کھلاڑی رقومات کی کمی کی وجہ سے پیچھے نہ رہے۔ انہوں نے کھیلوں میں لڑکیوں کی بڑھتی شرکت کی حوصلہ افزائی کی۔ کھیلوں کے لیے مختص رقومات کا ذکر کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ سپورٹ سے جڑے ایم ایس ایم ایز کو حالیہ مرکزی بجٹ میں مستحکم کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج کل کے نوجوان مختلف ٹیلنٹوں سے مالا مال ہیں اور وہ ایک ہی شعبے تک محدود نہیں رہنا چاہتے۔ وزیراعظم نے کہا کہ ملک بھر میں کھیل مقابلوں کے انعقاد سے بڑی تبدیلی دیکھنے کو مل رہی ہے اور نئے ٹیلنٹ سامنے آ رہے ہیں۔ جے پور مہاکھیل 12 جنوری کو شروع ہوئے تھے، جس میں جے پور رورل لوک سبھا کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے 6400 سے زائد کھلاڑیوں نے شرکت کی۔ بنگلورو میں آج بجلی اور نئی و قابل تجدید توانائی کے وزیر آر کے سنگھ اور پارلیمانی امور، کول اور کانکنی کے وزیر پرہلاد جوشی کی موجودگی میں پہلی G20 انرجی ٹرانزیشن ورکنگ گروپ میٹنگ شروع ہوئی۔ میٹنگ کے حاشیے پر ذرائع ابلاغ کے ساتھ بات کرتے ہوئے بجلی کے وزیر نے ورکنگ گروپ کے دائرۂ کار کو وسیع کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے توانائی کے ذرائع کو بروئے کار لانے کے لیے ٹیکنالوجی اور فائنانس سے متعلق تفاوتوں کو دور کرنے کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا۔ انہوں نے کہا کہ ترقی پذیر ممالک میں ابھی بھی 6 سے 7 ملین لوگ مکمل توانائی سے محروم ہیں۔ انہوں نے توانائی کی سپلائی چین کے مسائل کو حل کرنے کی بھی وکالت کی۔ انہوں نے تاہم کہا کہ حکومت نے بھارت میں بیشتر آبادی کو بجلی فراہم کرنے کے لیے متعدد اقدامات کیے ہیں۔ یہ میٹنگ 7 فروری تک جاری رہے گی۔ اس میں G20 ملکوں اور دیگر ملکوں سے تعلق رکھنے والے مہمان شرکت کر رہے ہیں۔ ایل جی انتظامیہ جموں و کشمیر میں زراعت اور اس سے منسلک دیگر سیکٹروں کو ترقی کی بلندیوں تک پہنچانے اور ان شعبوں سے جڑے لوگوں کی آمدن میں اضافہ کرنے کے لیے خاطر خواہ اقدامات کر رہی ہے۔ اس حوالے سے ICAR کے سابق ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر منگلا رائے کی صدارت میں قائم کی گئی اعلیٰ سطحی کمیٹی نے اختراعی نوعیت کے 29 پروجیکٹ تشکیل دیے۔ ان میں میوہ صنعت میں انقلابی نوعیت کی تبدیلی لانے والا پروجیکٹ بھی شامل ہے۔ پروجیکٹ کے تحت محکمہ ہارٹی کلچر، زرعی یونیورسٹیوں اور سینٹرل انسٹیٹیوٹ آف ٹیمپریٹ ہارٹی کلچر کے اشتراک سے اعلیٰ معیار کے پودے اور دیگر ٹیکنالوجی تیار کرے گا۔ محکمہ زراعت کے ایڈیشنل چیف سیکریٹری اٹل ڈولو نے کہا ہے کہ پروجیکٹ کے تحت آئندہ 5 برسوں کے دوران 111 لاکھ میوہ بوٹے تیار کیے جائیں گے، 390 ہیکٹر اراضی پر نرسریاں قائم کی جائیں گی اور 5500 ہیکٹر اراضی کو 12 میوہ فصلوں کے ہائی ڈینسٹی پلانٹیشن کے دائرے میں لایا جائے گا۔ اٹل ڈولو نے مزید کہا کہ اس پروجیکٹ کی بدولت جموں و کشمیر کی میوہ صنعت کو قومی اور بین الاقوامی سطح کے بازاروں تک مکمل طور سے رسائی حاصل ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ یہ پروجیکٹ کسانوں کا معیار حیات بہتر بنانے اور انہیں اقتصادی اور سماجی طور خود انحصار بنانے میں کافی مددگار ثابت ہوگا۔
जम्मू व कश्मीर में शहरियों के लिए इंतजामिया की तरफ से उठाए गए कदम आफ की जमीन आफ की निगरानी के तहत अब तक मुस्तहकीन में 28 लाख अराजी पासबुक तकसीम किए जा चुके हैं, जिसका मकसद लैंड रिकॉर्ड्स में आसानी और शफाफियत लाना है। इस फ्लैगशिप प्रोग्राम के तहत आम लोग CIS पोर्टल पर ऑनलाइन स्कैन डेटा की कापियां देख सकते हैं। यह पहल डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के तहत शुरू की गई है और जम्मू व कश्मीर ने इसके तहत आम लोगों को जवाबदेह और शफाफ तरीके पर सहूलियात मुहैया कराने में एक संगी मील तय हासिल किया है। सरकार की तरफ से जारी एक प्रेस बयान के मुताबिक अब तक लाखों शहरियों ने अपनी अराजी का रिकॉर्ड इस पोर्टल पर देख लिया है और इनके रद्दअमल से मुतवातिर तौर पर लैंड रिकॉर्ड्स को अपडेट किया जा रहा है। इस नए निजाम की बदौलत अराजी में खुर्द बुर्द करने और इंसानी मुदाखलत की कम गुंजाइश मौजूद है। दरियास्तान महकमे ज़राअत ने ज़राअत और इससे मुंसलिक शोबों को फरोग देने के लिए 5013 करोड़ रुपए की लागत से अमलाए जा रहे प्रोजेक्टों के लिए सूबाई सतह के तरबीती प्रोग्राम मुकम्मल किए हैं। तरबीती प्रोग्रामों के दौरान ज़राअत, बागबानी, पशुपालन, भेड़ पालन, माही परवरी, सेरीकल्चर, फूलबानी, मगज़बानी और दीगर शोबों से ताल्लुक रखने वाले 5273 अफसरों को तरबियत दी गई। इस सिलसिले के तहत 6 फरवरी से 10 अप्रैल तक यूटी के तमाम 20 अजला में तीसरी मरहले की तरबियत शुरू होगी। उधर किसानों की बहबूदी के मशावरती बोर्ड की तरफ से आज तालाब तिलो के किसान भवन में एक सम्मेलन का इनेकाद किया गया, जिस दौरान किसानों को मशरूम उगाने से मुतालिक मुख्तलिफ पहलुओं से रोशनास कराया गया। शुरका से खिताब करते हुए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ज़राअत अटल डलू ने कहा कि इंतजामिया यूटी में मशरूम की पैदावार बढ़ाने के लिए काफी इकदामात कर रही है। खबरों का बुलेटिन आप ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर से समाप्त कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने नई दिल्ली में इस बरस के यौम जमहूरिया परेड में हिस्सा लेने वाले एनसीसी कैडेट्स के साथ बातचीत की। इस मौके पर कैडेट्स ने यौम जमहूरिया कैंप के दौरान अपने तजुर्बे और तरबियत के बारे में जानकारी दी। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जम्मू व कश्मीर और लद्दाख के दस्ते को 17 एनसीसी डायरेक्टरेट में तारीखी और बेमिसाल चौथी पोजीशन हासिल करने पर मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि एनसीसी कैडेट्स नौजवानों की ताकत की अलामत हैं। एलजी ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़ी यूनिफॉर्म्ड यूथ ऑर्गेनाइजेशन की एनसीसी पर कौमी तालीमी पॉलिसी और हुकूमत के फ्लैगशिप प्रोग्रामों के मौसर निफाज में अपना हिस्सा अदा करने की ज्यादा जिम्मेदारी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि आज मनशियात की लत मुआशरे के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। उन्होंने कहा कि एनसीसी कैडेट्स को मनशियात की बिद्दत के खिलाफ मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की जरूरत है। पूरे मुल्क में आज जोश खरोश के साथ गुरु रविदास की जयंती मनाई जा रही है। संत रविदास जी ने समाज में भेदभाव को खत्म करने और यकसानियत कायम करने के लिए बेमिसाल काम किया है। उनकी जयंती के मौके पर आज मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कई खुसूसी प्रोग्रामों, यात्राओं और कीर्तनों का इनेकाद किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने संत रविदास जी को उनके जन्मदिन के मौके पर खराज अकीदत अदा किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने संत रविदास के नजरिए के ऐन मुताबिक समाज में आपसी रवादारी और इंसानियत के जज्बे को तक़वियत बख्शने के अपने अहद को दोहराया। वज़ीर-ए-आज़म ने मजीद कहा कि हुकूमत मुख्तलिफ फलाही इक़दामात की बदौलत गरीबों को बाइख्तियार बनाने और उनकी मियारी जिंदगी में बेहतरी लाने के ज़िम्मे में काम कर रही है। दरियास्तान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी संत रविदास जयंती के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। एक पैगाम में उन्होंने कहा कि गुरु रविदास जी की तालीमात इंसानियत के उसूलों की पैरवी करने और मसावी समाज वजूद में लाने के लिए रहनुमाई करती रहेंगी। एलजी ने गुरु रविदास जी को आपसी भाईचारे और इंसानी हमदर्दी का एक मुजस्समा करार दिया। उधर रामबन से हमारे नुमाइंदे रविंदर किचलू ने खबर दी है कि बटोट के गुरु रविदास सभा मंदिर में एक बड़ी तकरीब मुनक्किद हुई। इस मौके पर आरती और लंगर का भी एहतमाम किया गया। पाकिस्तान के साबिक सदर परवेज मुशर्रफ आज तवील अलालत के बाद दुबई के एक अस्पताल में इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 79 बरस थी। परवेज मुशर्रफ अमेरिकन अस्पताल दुबई में कुछ अरसे से जेर इलाज थे।
बी जे पी यूनिट गांदरबल की डिस्ट्रिक्ट वर्किंग कमेटी मीटिंग आज टाउन हॉल गांदरबल में बीजेपी यूनिट गांदरबल के जिला सदर मोहम्मद अमीन शाह की सदारत में मुनाकिद हुई। मीटिंग के दौरान पार्टी से जुड़े अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। जिला सदर ने कारकुनों पर जोर दिया कि वो जमीनी सतह पर पार्टी को मुस्तहकम करने में अपना कलीदी रोल अदा करें। इस मौके पर मुकर्रीन ने पार्टी के सबका साथ सबका विकास जमीनी सतह पर आम करने से मुतालिक मामलात को भी जेर बहस लाया। और अब चंद मुख्तसर खबरें। मुंबई में मुनक्किदा 3 रोजा आउटबाउंड ट्रैवल मार्ट इख्तिताम पजीर हुआ। जम्मू और कश्मीर के महकमे सियाहत की तरफ से इस मार्ट में लगाए गए पवेलियन में सियाहत से जुड़े अफराद और आम लोगों ने काफी दिलचस्पी का मुजाहरा किया और यहाँ के सियाहती मंजरनामे के बारे में जानकारी हासिल की। महकमे की टीम ने इस मौके पर बताया कि जम्मू और कश्मीर इंतजामिया यूटी में 75 नए सियाहती मकामात को सियाहती नक्शे पर ला रही है, जहाँ सयाहों के लिए हर तरह की सहूलियात दस्तयाब रखी जाएंगी। J&K जुडिशल अकेडमी जम्मू में आज लीगल एड डिफेंस काउंसलिंग के लिए 2 रोजा तरबीती प्रोग्राम इख्तिताम पजीर हुआ। इस तरबीती प्रोग्राम का इनेकाद नलसा की तरफ से शुरू की गई लीगल एड डिफेंस काउंसिल स्कीम के तहत किया गया था। यह स्कीम जम्मू और कश्मीर के 10 अजला समेत मुल्क के 350 जिलों में अमलाई जा रही है। और अब मौसम से मुतालिक जानकारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू और कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान अक्सर मकामात पर हल्की बारिश या बर्फबारी होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 12 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 1.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 23.1 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 8.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उधर लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 1.4 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत -10.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। खास खास खबरों का खुलासा एक बार फिर सुन लीजिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया जयपुर महाखेल के शुरका से खिताब। कहा, मरकजी हुकूमत मुल्क में सपोर्टिंग कल्चर को परवान चढ़ाने में कोई भी दकीका नहीं करेगी फरोगुजाश्त। एलजी इंतजामिया यूटी में बागबानी के शोबे को मेयार की बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए पुरज़म। अगले 5 वर्षों के दौरान 1 करोड़ 11 लाख मेयारी मेवा पौधे किए जाएंगे तैयार। जम्मू और कश्मीर में आफ की जमीन आफ की निगरानी पहल के तहत अब तक मुस्तहकीन में 28 लाख अराजी पासबुक किए गए तकसीम। लैंड रिकॉर्ड्स में शफाफियत और आसानी लाने के ज़िम्न में एक अहम कदम। और पाकिस्तान के साबिक सदर परवेज मुशर्रफ का तवील अदालत के बाद दुबई में इंतकाल। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म होता है। आप समाप्त करें तबसरा। कॉलोनी में खुसूसी गवर्नेंस कैंप के इफ्तिताह के मौके पर माइग्रेंट्स और पीएम पैकेज मुलाजमीन को यकीन दिलाया कि वो उनके मसाइल के फौरी हल की तरफ एहसास के साथ तवज्जो दे रहे हैं। काबिल जिक्र है कि 6 मकामात पर 12 रोजा तवील कैंप का बुनियादी मकसद माइग्रेंट्स के लिए सोशल सिक्योरिटी की 100% सेचुरेशन को यकीनी बनाना है। इस कैंप में 18 महकमों ने अपने स्टॉल लगाए थे।